मैं तेज नारायण टीम 360 की तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी महत्वाकांक्षी लोगों को आज के इस सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए आज आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो भी यहाँ पे बुलाए हैं वो बहुत ही आपके चिंतक होंगे, क्योंकि आपको यहाँ से जो आज इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हजारों आदमी ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों आदमी अपनी जिंदगी बदलने की राह पे है। इसलिए हम लोगों के बीच इस इंफॉर्मेशन के देने के लिए हमारे बीच बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है जिसको हम यहाँ कॉल करना चाहेंगे। इससे पहले हम आप लोगों से 2-3 चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जिसके पास भी मोबाइल है प्लीज अपना कृपया मोबाइल ऑफ कर लें, क्योंकि आपके मोबाइल के दिन से हम लोगों का सीक्वेंस भी टूट सकता है, आपको भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसलिए प्लीज अपना मोबाइल सब ऑफ कर लें। सेकेंड चीज है कि सर हम लोगों का सेमिनार इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस टाइम बीच में खड़ा होकर ना पूछे, आपको समय दिया जाएगा पूछने के लिए। जब आपसे बोला जाए कि आप अपना सब क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं तो उस टाइम आप लोग प्लीज अपना सवाल पूछे। तो ज्यादा देर हम लोग बाधा न बनते हुए उस ग्रेट पर्सनैलिटी को बुलाने के लिए मैं कॉल करना चाहूंगा मिस्टर विपुल सर को। प्लीज सर आप आए और अपने इस सेमिनार को शुरुआत करें। Okay, let me introduce first. I am Vipul Sharma. Basically, I am a corporate trainer of new mindset from Netherlands-based organization Golden Inspirations. Apart from this, I am a nutritionist, and there is a subject called quantum physics, which is used in NASA, and I deliver lecture on that particular subject, especially for those people who got selected in civil services. There are two things that I need to say. First, I was delivering lecture for those who were got my point. मेरा voice, is there any challenge? What should be the medium? It should be Hindi, English or bilingual. What should be the medium? It should be Hindi, English or bilingual. Bilingual. Okay, so let me cover my introduction. That would be English, so that people who are sitting here, they would understand, and after that I would cover all the stuff regarding your studies, and that would be Hindi. Okay, so as far as my introduction is concerned, I am from Team 360. I deliver lecture on quantum physics, which is used in NASA. Apart from this, I deliver lecture for those people who got selected in civil services, like you are talking about, like people those who are sitting here who are preparing for BPSC. When it comes to Rajasthan, because we are from Rajasthan, usually people prepare for RPSC, and people those who are preparing for competitive exam like IAS and all, they prepare for UPSC. So I deliver lecture for them. Okay, but gradually I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few products like ridge analysis, pineal gland, and so many products that we have introduced, and we'll discuss all the stuff. But before I start the session, I would share my story of school time. When I was in 8th standard, I was in 7th standard, I used to avoid something, and I would share with that. Okay, so the first experience of mine was when I was in 7th standard, because people or those who are sitting here probably मुझे इतने बड़े लग रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये 9th स्टैंडर्ड के हैं, 8th स्टैंडर्ड के, किस स्टैंडर्ड के हैं? तो पीपल दोस आर सिटिंग हियर, कौन सी क्लास के हो? ये देखो 10th वाले, उससे पीछे 6th, उससे पीछे यानी 7th 8th 9th 10th वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। कोई 5th का भी बैठा है क्या? इज देयर एनीवन हु सिटिंग? अच्छा 5th के भी हैं, 5th से ऊपर अबव होंगे, 6th 7th के भी होंगे, 8th के भी होंगे, 11th का कोई बैठा है? ठीक है, यानी इन बिटवीन 5 to 10, 5वीं से 10वीं के बीच के बच्चे बैठे होंगे। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, आई वुड कवर, बिकॉज हम लोगों ने कहा था तो मेरे को दो तरह से बात करनी है, बिकॉज पेरेंट्स आर सिटिंग, पेरेंट्स भी बैठे हैं, मुझे आप लोगों से भी बात करनी है, और बच्चे तो काफी सारे बैठे हैं तो मुझे आपसे भी बात करनी है। तो मैं दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और दोनों से रिलेटेड बात करूंगा। क्यों इंडिया के अंदर हम ये प्रोग्राम लेके आए, जबकि मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में
क्वांटम फिजिक्स पे लेक्चर लेता रहा हूं, कहां जरूरत पड़ गई मुझे इतना पेन लेने की, विनीत जी को इतना पेन लेने की, कंपनी फॉर्म करने की। अगर नेट पे हमारा नाम लिखोगे, मेरा नाम विपुल शर्मा है, अगर आप मेरा नाम नेट पे लिखोगे विपुल शर्मा फ्रॉम टीम 360, तो हमारे 1500 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको, जी टीवी, ई टीवी, सोनी टीवी, बहुत सारा मिलेगा, ऐसे विनीत सर का मिलेगा। तो अननेसेसरी हमें जरूरत ही क्यों है आप लोगों से बात करने की, ऐसा क्या पड़ा, आज उसी पे बात करेंगे। और लाइफ में पहली बार सुनोगे और देखोगे जो चीज हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बैठे हैं इसलिए बता रहा हूं, और प्लीज पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्या चीज बता रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं स्कूल टाइम में था और ऐसे इस तरह का सेमिनार हो जाता था, लाइक पेरेंट्स तो आजकल बुलाने लगे, हमारे टाइम में तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, हमने कभी देखा नहीं, पीटीएम ही नहीं होती थी। सो हमारे टाइम में इस तरह के सेमिनार्स होते थे, यूजुअली प्रेयर टाइम में होते थे। प्रेयर होती है यहाँ भी होती है ना, तो प्रेयर टाइम में सेमिनार होता, और सेमिनार में कोई जादूगर आ गया, कोई ना कोई स्कूल वाले बुला लेते, ये दे यूज्ड टू इनवाइट पीपल लाइक वी केम हियर। और मजेदार बात ये है, द मोमेंट जिस पॉइंट पे हमारे पीटीआई, यहाँ पीटीआई सिस्टम है या पीटीआई सर होते होंगे या स्पोर्ट्स टीचर होते होंगे, है ना, हमारे भी ऐसे सारे बच्चे खड़े हुए प्रेयर टाइम के अंदर, और द मोमेंट जैसे ही कोई हमारे जैसा आता तो हमारे पीटीआई सर कहते सारे नीचे बैठ जाओ, और जिस पॉइंट पे वो ये बात बोलते ना सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं थी, और उसमें भी स्पेशली 2 सब्जेक्ट मुझे दुनिया के सबसे गंदे सब्जेक्ट लगते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाद में साइंस पकड़ा, वो अलग बात है, क्वांटम फिजिक्स में गए। इनिशियल डेज पे तो हम लोगों को पढ़ाई पसंद ही नहीं थी, और 2 सब्जेक्ट दुनिया के सबसे गंदे लगते थे। उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होता था, अरे वाह यार, बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स। मतलब मुझे लगता था ये पैदा ही क्यों है सब्जेक्ट, इसकी इस देश को जरूरत ही क्यों है, लिटरली। और अब यहाँ पे 10th के बच्चे बैठे हुए हैं, कौन है, जस्ट रेज योर हैंड। 10th के, अरे वाह सारे बैठे, तो इधर भी बैठे हुए हैं। एक सब्जेक्ट है, लाइक सीबीएसई बोर्ड है ना ये, हाँ, तो इसमें एक टॉपिक आता होगा ट्रिग्नोमेट्री, आता है क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस। न मुझसे एलएचएस से होता था, न मुझसे आरएचएस से होता था, कुल मिला के होता नहीं था। और अलजेब्रा दुनिया का सबसे बेकार सब्जेक्ट, और उससे सबसे बेकार पार्ट अलजेब्रा था। मुझे ये है ही क्यों, बता रहा हूं मैं आपको, इतना बेकार लगता था। सेकंड दुनिया का दूसरा सबसे बेकार सब्जेक्ट लगता था एसएसटी। बाबर भारत क्यों आया, दुनिया चपटी गोल होती होगी, मुझे क्या करना, लिटरली। और मुझे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उसमें भी स्पेशली बता रहा हूं ये सब्जेक्ट तो बेकार थे। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर, बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, क्यूब रूट, काय को पढ़ना है, लिटरली बता रहा हूं। इसीलिए आज आपसे मुखातिब हुआ हूं कि भाई हम आपसे सारी चीज शेयर करेंगे, बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बाद में 10th के बाद पीक पकड़ा है, 10th से पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे। और मजेदार बात, आज आपसे मुखातिब हुए ना तो आपसे 7 क्वेश्चन पूछूंगा, एंड दैट वुड रिलेट। कई तो ऐसे होंगे बढ़िया है, चलने दे आज पूरा दिन निकल जाए तो बढ़िया है, कईयों के तो दिमाग में ऐसे भी हो रही होगी। आज आपसे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे पढ़ाई से रिलेटेड, मेरे हिसाब से शायद ही कोई पॉइंट बच जाए जो रह जाएगा कि ये चीज यार मेरी रह गई, ये सर ने नहीं बताया, बाकी तो सारा कवर हो गया। सारे जो आपके जख्म है ना, दर्द, वो सारे कवर होंगे उसके अंदर, ठीक है। पहला जख्म कहूंगा या पहली प्रॉब्लम कहूंगा या समस्या, यूजुअली आई यूज्ड टू फेस। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू दोज हु आर सिटिंग हियर एंड दे आर फेसिंग द चैलेंजेस, जो पढ़ते तो बहुत हैं, कमबख्त किताब याद नहीं होती, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी याद नहीं होती। अगर कोई एक भी है तो प्लीज हाथ खड़े करो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, टूटा हाथ मत खड़े करना, पूरा हाथ खड़े करना। मैं उनमें से था जिसे किताब ही पसंद नहीं थी, तो आप तो फिर अच्छे हो। एक खड़ा हुआ है जिसने कहा है, 2 3 4 5, अरे वाह वाह। चलो अगेन आई विल चेंज द क्वेश्चन। ये तो थोड़ा सा कठिन है, इसको सिंपल करते हैं। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे बैठे हैं जो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, किताब भी याद कर ली, सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, या यूं कहूं एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले ऐसा फील होता है, अरे यार भगवान मैंने याद तो सारा क्या था यार, क्या था यार, फिर बोल अरे यार ये तो था, मैं भूल गई। ऐसा किसी के साथ होता है क्या? याद किया लेकिन एट द टाइम व्हेन यू नीड वो भूल जाते हैं, होता है ना। अगेन आई विल चेंज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे कोई हाथ उठाता नहीं है, जो अब मैं पूछूंगा। देखें यहां उठाते हैं क्या, शर्म आती है या पता नहीं क्या है, देख लेते हैं। कितने ऐसे हैं बच्चे जो यहां बैठे हैं, लेकिन एग्जाम, मान लो एग्जाम भी आपने पूरा तैयारी कर रखी, यू हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टफ रिगार्डिंग योर स्टडीज एंड ऑल, सब कुछ बाय हार्ट, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम जस्ट 2 or 3 days बिफोर, यू फील लाइक पेट दर्द होना, बुखार आना,
तबियत खराब होना, हाथ से पसीना आना, किसी के भी होता है तो प्लीज, मेरे तो हाथ से पसीना बहुत आता था, तो कॉपी गिली कर देता तो लिखे में इंक फैल जाती थी। एक भाई के होता है, दो के होता है, तीन का होता है। आप हाथ खड़े करोगे तो आज इस समस्या का परमानेंट इलाज हो जाएगा। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, अरे मुझे मालूम मेरे कईयों के देखो में, चलो ठीक है, मालूम है ना, यूजुअली इट हैपेंस। अच्छा, इसको फिर से चेंज करता हूं, कितने बच्चे ऐसे हैं, बिकॉज मैं जो सब्जेक्ट आज अमेरिका का आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, लेकिन मेरा पूछना वाजिब है, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, याद भी कर लिया, यू हैव गॉन थ्रू, सब कुछ याद कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम, सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने रखा हुआ है क्वेश्चन पेपर, एंड एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, आंसर लिखने के टाइम आधा याद है, आधा भूल गए, या 70% याद है, 30% भूल गया, अरे वाह, सारे ही खड़े, कमाल हो गई। अरे अगर 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 ये होता है ना, अगर ये होता है ना, तो एक चीज तो कंफर्म होती होगी, जैसे मान लो पेपर सामने रखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटकती होगी, और यार क्या आंसर इसका, वो याद ही नहीं आता है। जब आप क्लास के बाहर जाते हो पेपर देख के और आंसर क्वेश्चन में, अरे यार मैं तो वो वाला लिख गया इसका, या साथ वाला बोलता है ये नहीं इसका ये था, ऐसा किसी के साथ होता है क्या? अरे मैं जानता हूं ना। अच्छा, आप लोग तो मैच्योर, सक्सेसफुल, इंटरेस्टिंग, मतलब हर तरह से यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट व्हेन इट कम्स योर एजीज। मेरे साथ एक प्रॉब्लम और आती थी, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे होंगे, ओके, कई बच्चे ऐसे होंगे जो लाइक एग्जाम, जैसे मैथमेटिक्स है, 10th का ही ले लेता हूं या 9th का ले लो, मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, गणित सदैव ही बेकार थी, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं, 10th के अंदर लाइक बच्चे ना जो इंटेलिजेंट कम्युनिटी थे, दे यूजुअली टॉक आफ्टर एग्जाम, पता नहीं क्या बात करते हैं मुझे नहीं पता, पर वो भाई साहब, अच्छा डेसिमल्स में, पॉइंट्स में भी मैथमेटिक्स में आंसर आते हैं कई बार, तो आपस में बात करते हैं, इसका है ना 13.911 आ रहा है, अब 13.911 आंसर आ रहा है, दूसरा ये है 13.9 नहीं आ सकता, कैसा जैसे 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, दूसरा एक और आके कहेगी, कोई लड़की कहेगा, लड़का है इसका तो 9.77 है, और मैं बैठा सोच रहा हूँ मेरा 1100 कैसे आया क्योंकि मैं 1000 से नीचे उतरता ही नहीं था, लिटरली बता रहा हूँ, बट रीजन कुछ भी रहे होंगे। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, जब मैं 10th में था ना, तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। अरे इस मसले की बात है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे देश का उत्थान करना है, द सिंगल पॉइंट, द सिंगल एजेंडा वाज, जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बना ना, इस एसएसटी और इस गणित को तो इस देश से निकालूंगा, क्योंकि मेरे जैसे कई है जो दुखी होंगे। आई वाज लाइक दैट, बट इंटरेस्टिंग थिंग, ये चीजें मैंने सिर्फ इसलिए पूछी सो दैट वुड बी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट वी आर हैविंग। नाउ द बुक इज इन माय हैंड। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इतनी मोटी किताब, चाहे फिर वो बायो की हो, चाहे वो एसएसटी की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे साइंस की हो, किसी की भी हो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं, यहां बैठे देखो, ईमानदारी साथ खड़े करना भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि किताब को इधर से फ्लिप करें ऐसे, तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से फ्लिप करें तो सारे चित्र याद हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन रेज। अरे लेकिन इसमें मेहनत लगेगी, देखो कितना हाथ दर्द होगा, ये उठा के लाओ, यहां तक लो, पन्ने पड़पड़ाओ, भैया हाथ में दर्द हो जाएगा। इसको सिंपल करते हैं, इसको सिंपल करते हैं। कितने हैं जो ये चाहते हैं कि किताब को ऐसे हाथ में लो, इधर लाओ और सूंघो, और सारी सार याद। अब बताओ कितने चाहते हैं ऐसा? जापान में ऐसा ही होता है, और मोर और लेस मुझे मालूम है सब चाहते हैं। यानी एक चीज तो कंफर्म है भैया, मेहनत कोई सा नहीं करना चाहता, ये तो क्लियर होगी। चलो ठीक है, see, because we have come here and we know that we are not here to waste your time, so now I would share the concept that we have already introduced in India. The first product that we have introduced, so excited people, अरे भाई लोगों, आप ही के बारे में बात कर रहा हूं, पर वो नॉलेज सिर्फ मेरे पास ही है। अभी करें आगे बात? ओके, देखो दो कंसेप्ट है। जो पहला कंसेप्ट हम इंडिया में लेके आए उसका नाम है रिज एनालिसिस। बोलो रिज, वापस बोलो रिज एनालिसिस। ओके, क्योंकि यहाँ पेरेंट बैठे हैं, अब उनका भी मतलब रोल शुरू हो जाएगा। एक ऐसा कंसेप्ट जिसके अंदर आपके हाथ के फिंगरप्रिंट लेंगे हम। दोनों हाथों में कितनी अंगुलियां हैं? अरे 8 अंगुलियां, तो 2 तो अंगूठे हैं, ठीक है। दोनों हाथों में 8 अंगुली और 2 अंगूठे, हर एक के 3 प्रिंट के हिसाब से 30 प्रिंट यहां से अमेरिका जाते हैं, वहां पे वैज्ञानिक स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे एक 58 पेज की रिपोर्ट बन के आएगी,
जिसका नाम है रिज एनालिसिस, जो आपके हाथ के फिंगर की रेजेस को काउंट करके बायोलॉजिकली ये बता देती है कि आपका ब्रेन बना किस चीज के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए बना है रिपोर्ट में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते हो, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते हो, अंग्रेजी में बात करने से तो नहीं घबराते हो, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हो, ऐसा कोई भी चैलेंज है तो रिपोर्ट में निकल कर आ जाएगा। उसके अतिरिक्त आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? अगर लेफ्ट वाला, जितने इंक्लूडिंग पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स बैठे और बच्चे बैठे, सबको मिला के कह रहा हूं कि आपको पहले ये पता तो चले, एज फार एज आवर साइंस इज कंसर्न, साइकोलॉजी इज कंसर्न, वी आर हैविंग टू ब्रेन, हमारे दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो इस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। क्योंकि जितने बच्चे यहां बैठे हैं इंक्लूडिंग पेरेंट्स, जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, चार्टेड अकाउंटेंट, वकालत या पढ़ाई के थ्रू करियर बनाते हैं। और जितने बच्चे यहां बैठे जिनका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइंस के लिए अच्छे हैं। अब दुर्भाग्य या विडंबना इस देश की ये है कि हमें पता ही नहीं है कि पहले तो कि हमारे दो पार्ट है ब्रेन के, दूसरी विडंबना हमें ये नहीं पता कि हमारा कौन सा वाला ब्रेन चल रहा है जिसके बेसिस पे करियर बनना चाहिए। तो अभी आप ही लोगों से पूछते हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, में सबसे ही बात कर लूंगा, सर से पूछे, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? बस फील कर रहे हैं। फील करने से, मतलब बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, फील किया तो ठीक है। सर से पूछ लेते हैं ध्रुव, जी। माय नेम इज ओके ध्रुव, व्हिच पार्ट इज डोमिनेटिंग, कौन सा पार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? अंदाजा से है ना। मैम से पूछ लेते हैं, मैम आपको क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला? हाउ डू यू नो? अच्छा लगता है, ये नया आंसर है, अच्छा लगता है इसलिए बताया। चलो इधर भी पूछ लेते हैं, सर आपको क्या लगता है अपना कौन सा वाला पार्ट? हाँ दोनों से लेंगे, ये वाला ज्यादा चल रहा है या ये वाला? हाउ डू यू नो, आपको किससे पता है? मैंने नाम तो पूछा ही नहीं है। हाँ राइट। चलो अभी बच्चों से पूछते हैं। हाँ भाई, ये तो भाई टेंशन में आ गया, क्या हो गया? चलो आपको क्या लगता है, क्या कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा है? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता? रुचि है। ओके, इन्होंने कहा है इनका रुचि है। अच्छा हाँ भाई, आपका क्या नाम है? हैं? गर्वित भाई, कौन सा पार्ट वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? हाँ, आपको कैसे पता? फील किया। अच्छा चलो, पीपल आर सिटिंग देयर एंड दे आर सेइंग या तो राइट वाला पार्ट है या लेफ्ट वाला पार्ट है। ये प्रॉब्लम है। अभी आपने घुस के तो नहीं देखा ना कि मेरा लेफ्ट वाला वर्क कर रहा है या राइट वाला कर रहा है, ठीक है ना? कोई आइडिया नहीं है, इधर भी पूछ लेते बच्चे बैठे। हाँ बेटा, आपको क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा होगा? यू हैव नो आइडिया? कोई आइडिया नहीं। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, दिल्ली के अंदर एक स्कूल में सेमिनार किया था और इसी तरह का प्रोग्राम हो रहा था और पेरेंट्स वर सिटिंग देयर, इवन स्टूडेंट्स वर सिटिंग देयर, एंड सडनली आई आस्क्ड द पेरेंट, बच्चे से पूछा बेटा आपको क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो वो बेचारा सोचने लग गया 2 मिनट, कौन सा कर रहा होगा। वो सोच के बताता होता है, उसके पहले पापा खड़े हो गए, अरे रहने दो, रहने दो, उसको मत पूछो। अरे क्यों नहीं पूछूं? अरे छोड़ो ना, क्या करोगे पूछ के, रहने दो। अरे मैंने कहा बताने दो यार, बच्चा बताएगा। अरे तो होगा तो बताएगा ना। तो उनको इस पे भी डाउट है कि इसका लेफ्ट वाला या राइट वाला है ही नहीं, ऊपर वाला माला खाली है। ऐसा नहीं होगा भाई, होता जरूर है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा वाला पार्ट डोमिनेटिंग है। जितने बच्चे बैठे हैं, चलो आप लोगों के साथ साथ में पेरेंट्स के साथ भी सामने बैठे हैं, पूछ लेता हूं, बिकॉज पेरेंट्स आर सिटिंग। आपको क्या लगता है आज की डेट में बच्चों के रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है पढ़ाई से? क्योंकि मेरे को वो भी कवर करना है और बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है, कहां से शुरू करूं? यहां से शुरू कर देता हूं। मैम क्या लगता है बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है पढ़ाई से रिलेटेड जो आपको लगता है? क्योंकि मुझे तो सारे ध्यान है। आप माइक दे दो। मोबाइल देखना है तो बच्चे मोबाइल तो दुश्मन है इस देश का। चलो मोबाइल ही है। अरे अपना कुछ नया भी बताना। अच्छे से याद नहीं करते हैं। अच्छे से याद नहीं करते हैं। हाँ मोबाइल सर्किट है। मोबाइल है। ये बच्चे पर अगर हम एक्टिव रखते हैं पढ़ाई के अंदर तो बच्चा मन लगा कर और अगर 5 मिनट के लिए अगर बच्चे के सामने से निकाल गए, ये जेन्युइन बात आई है, बिल्कुल सही कहा। बेटों को खुला छोड़ा नहीं और अच्छा है, बिल्कुल सही है। पढ़ाई बंद करना, गेम ज्यादा खेलना। अरे वाह, ये भाई लोगों सुन लो, तुम्हारी आ रही है बातें यहाँ पे। मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। अच्छा इधर भी लेते हैं, इधर लो, हाँ तेल रहे उधर भी ले लो। सर बच्चा जो है इमेजिनेटिव ज्यादा करता है, बस रखा हुआ है लेकिन उसका दिमाग कहीं और थिंकिंग कर रहा है। दिमाग कहीं और ही रहता है। तुम लोगों का कहाँ रहता है दिमाग? किताब नहीं रखते हो। मोबाइल में ज्यादा एंगेज। सर से पूछो ब्लैक टी शर्ट में, वो भी बताएंगे।
सबसे समस्या तो मोबाइल ही है अभी आज के डेट में और है। अंतरराष्ट्रीय समस्या है ये पेरेंट्स की, क्योंकि बहुत देशों में देखा हमने बच्चे सारी जगह। ये वो पढ़ाई के टाइम में जो है ना, जब गार्जियन बैठे हैं तो अच्छा पढ़ाई है, नहीं तो वही मस्ती जहाँ गार्जियन बैठे मस्ती में गलत है। मोबाइल, ये मोबाइल इस देश का दुश्मन है। अच्छा, मोबाइल में भी एक चीज और बताता हूँ, ये बच्चे लोगों को पसंद है आजकल, पता नहीं वो पहले तो पबजी आता था, आजकल कुछ और आने लग गया ना, फ्री फायर। देखो इनको रट्टे पड़े हैं। अरे मैं एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट पे बच्चा लगा हुआ है, मार मार इसको मार। अरे तू किसको मारेगा यार, पता नहीं उस पबजी में कुछ शायद मिलके खेलते हैं, कुछ पता नहीं क्या है। बट द थिंग इज, उसका बायोलॉजिकल रीजन क्या है, नुकसान है, वो हम बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये टेस्ट आपका सारा ब्रेन हमारे सामने एक्सरे होके होता है कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, आप हिंदी में कमजोर हो तो क्यों हो, मात्राओं की गलती कमजोर होने से क्या आ रही है, या इंग्लिश का प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। किसी किसी को गणित में प्रॉब्लम होगा, किसी को बायोलॉजी में प्रॉब्लम होगा, किसी को सोशल साइंस में प्रॉब्लम होगा, किसी को पढ़ाई में ही प्रॉब्लम होगा, किसी को सुबह उठने में प्रॉब्लम होगा। सब पता रहो, जैसे धक्के देके उठाना पड़ता है, अरे उठ यार संडे आएगा तो चले ना, यूजुअली दे दो। उसके अलावा बताता हूं पेरेंट्स की जनरल चैलेंज, मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। मतलब अच्छा, बच्चों का और पेरेंट्स का एक जोरदार चीज बताता हूं, बच्चा अपनी जान में पूरी पढ़ाई करता है, लेकिन पता नहीं जब भी मम्मी पापा के सामने आता है ना, उनके जवाब दिया तू पूरे दिन मोबाइल में लिए बैठा रहता है, जबकि वो कहते हैं अभी पढ़ा था मैं, अभी पढ़ा था, थोड़ी देर के लिए हाथ में लिया मैंने मोबाइल। तो वहां तो कोई सुनवाई है ही नहीं, भले आप 1 घंटे पढ़े हो, 2 घंटे पढ़े हो, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, इसलिए वो इमेज बनी हुई है। द थिंग इज, जितने पेरेंट बैठे मैं उनका भी बता देता हूं, आधे से ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम यह है कि वो मोबाइल में एंगेज रहते हैं। दूसरा, पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं बैठता है। इवन कई बार पेरेंट पूछेंगे भी ना, 3 दिन पहले का भी याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो वो भी पूछते हैं अरे यार 3 दिन पहले तो कराया था फिर भूल गए। ये अगर प्रॉब्लम आती है, या कोई बच्चा हर समय मोबाइल में लगा रहता है, या बच्चा चिड़चिड़ा है, और मजेदार बात, आप कोई काम हाँ कर दूंगा हाँ कर दूंगी कह तो देते हो, लेकिन बाद में काम ही याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, फिर आप पकड़ के तेरे को बोला था। पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई के इतर भी बता रहा हूं, अगर ऐसा किसी के साथ भी हो रहा है, या पढ़ने बैठे और कहीं और ही खोए हुए, फिर पीछे से टपली पड़ती है पढ़ाई में दिमाग लगा, हाँ फिर पढ़ने में लगेंगे, अगर ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो रहा है तो आप समझ लीजिए उसका मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कम है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि अगर जो भी बच्चा ऐसे, मान लो किताब खोल के पढ़ने बैठते हो और पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते कुछ और समाज दिमाग में आने लगता है और सोचने लग जाते हो, फिर वापस से पढ़ने बैठोगे। आजकल मोबाइल का जमाना है, हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, आपका मोबाइल का जमाना है, मोबाइल हाथ में आया और मोबाइल में लग गए, 5 मिनट मतलब आधा घंटा पढ़े और फिर वापस से व्हाट्सएप देखने लग जाओगे या फेसबुक पे इंस्टा में लग जाओगे। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लो कि आपका मेलाटोनिन का हार्मोन कम है। अच्छा चलो और बताता हूं इसके आगे, जितने बच्चे यहां बैठे हैं जिनका, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है ना, वो लोग पढ़ाई भी उनका टू द पॉइंट आंसर होते हैं, वो रट के आंसर याद नहीं कर सकते। जितने बच्चे बैठे हैं, पहले तो यही प्रॉब्लम है क्योंकि बचपन में माँ बाप ने सिखाया लिख लिख के याद करो, बोल बोल के याद करो, यही हमारी परंपराएं रही है पढ़ने की। बट बायोलॉजिकली हमें नहीं पता होता है कि हमारा कौन सा जो ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है और कैसे उसके अंदर चीज ज्यादा जल्दी याद हो सकती है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ग्राफिकली चीज याद होती है, चित्र से याद होता है, तो वो बच्चे होंगे जिनका राइट वाला पार्ट ज्यादा चल रहा है। अब मजबूरी है कि आप में से किसी को नहीं पता है कि आपका राइट वाला ज्यादा चल रहा है या लेफ्ट वाला, आप सिर्फ आइडिया लेते हो, मेरा इंटरेस्ट है या मुझे लगता है शायद मेरा राइट वाला ज्यादा ब्रेन चल रहा होगा, या मुझे पसंद है, मुझे ऐसा फील हुआ, लेकिन ऑथेंटिक किसी का भी नहीं है। परफेक्टली गारंटी से नहीं कह सकते हो कि मेरे लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है या राइट वाला ज्यादा चल रहा है। ये सब इस टेस्ट में आएगा। इसीलिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय है, उन्होंने 1 घंटे का भाषण दिया इसके ऊपर कि ये टेस्ट हर बच्चे का 5th स्टैंडर्ड में हो जाना चाहिए, ताकि 5वीं कक्षा में ही पता चल जाए कि बच्चे का ब्रेन बना किसके लिए, अगर डॉक्टर के लिए बना है। चलो यहाँ पेरेंट्स बैठे, मैं सर से पूछता हूँ, एक बात बताओ सर, अगर आज आपको, कौन सी क्लास में बचा? एक 6 में है और एक 8 में। चलो, अगर मान लो सर जो बच्चा 8th क्लास में है, आज आपको ये पता चल जाए कि उसका ब्रेन जो है IAS अफसर के लिए या बिहार लोक सेवा आयोग के लिए उस टफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का अच्छा बच्चा है, तो आप उसको आर्ट्स दिलाओगे या साइंस दिलाओगे या कॉमर्स दिलाओगे? उसे तो आर्ट्स लेनी आर्ट्स चाहिए, लेनी चाहिए। आर्ट्स लेनी चाहिए क्योंकि IAS आसानी से बनते हैं, है ना। चलो मैं सर से पूछता हूँ, सर आपको क्या लगता है, अगर कोई बच्चा, हाँ कोई, है ना, आपको क्या लगता है अगर आपको ये पता चल जाए कि बच्चे का ब्रेन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बना है, तो उसको कॉमर्स दिलानी चाहिए, साइंस दिलानी चाहिए, आर्ट्स? कॉमन सेंस है। अब प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं है तो दिलाओगे क्या, और ज्यादातर बच्चों के आजकल 90% से ज्यादा मार्क्स आते हैं हर सब्जेक्ट में। भाई साहब
भले वो 50% डिजर्व करे लेकिन 90% मार्क्स आते हैं। अब 90% वाला बच्चा तो यही समझेगा ना कि मैं इंटेलिजेंट हूं और फिर अपनी पसंद के हिसाब से, उसमें उसकी गलती नहीं है। अब उसके तो मार्क्स आ गए, उसको ये भी आइडिया नहीं कि लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है या राइट वाला चल रहा है, दोनों साइड में ना मार्क्स भी ज्यादा है, तो वो करियर हाथ में ले लेता है जिसके लिए उसका ब्रेन बना ही नहीं है। और फिर होता क्या है, एवरेज बच्चा बन के रह जाएगा, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं होगा। चलो मैं आप सबके सामने एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद इसकी वीकनेस दूर करने का तरीका बताऊंगा। क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, शायद आप लोग भी रिलेट करेंगे और पेरेंट्स भी पढ़ने वाले हैं तो सबको पता होगा। एक तो वो होते हैं जो हमारे जैसे होंगे, जो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना, उन्हें जूते मार मार के सिखाया जाता था, आजकल तो हाथ साफ करते नहीं है। हमारे टाइम में तो टीचर मूड फ्रेश करने के लिए भी मार लेता था, ठीक है ना, लेकिन अब समय बदल चुका है, अभी कोई हाथ वाथ नहीं लगाते। ईमानदारी से होता, एक कैटेगरी तो वो होती है जो मेहनत करती ही नहीं है, तो उसको तो मैं गिनता ही नहीं हूं, 10 में से 4 या 3 नंबर वाले बच्चे हैं वो। दूसरी कैटेगरी होती है रटने वाले, टीचर ने कह दिया 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4, रट के उसको याद कर लेंगे। तीसरी कैटेगरी होती है सेल्फ ड्रिवन बच्चों की, 2 + 2 4 होता है तो 4 4 8 होता होगा, 8 8 16 होता होगा, 16 16 32 होता होगा, 32 32 64 होता होगा, 64 64 128 होता होगा। ये वो बच्चे हैं जो सेल्फ ड्रिवन है। हम यही टेस्ट करके पता करते हैं कि ये जो क्वालिटी है ना इसकी किस फील्ड के अंदर है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों बच्चे 70% वाला और 95% वाला दोनों जब आईआईटी का एग्जाम देने जाते हैं तो आईआईटी के अंदर 95 वाला तो चुटकियों में सेलेक्ट हो जाता है और 70% वाले को बेचारे को जोर आता है, एक अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में क्लियर होएगा और फिर निकलेगा। ये इस पूरी जो है ना सिस्टम उसके अंदर हम लोग निकाल के देते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी है, आपको अगर मूवी का नाम ध्यान हो तो 3 इडियट्स आई थी, उसमें रणछोड़ दास बड़ा इंटेलिजेंट था, बगैर किसी मेहनत के पास कर जाता था और बाकियों के जूते घिस जाते थे मेहनत करने में। हम ये टेस्ट से ये निकाल देते हैं कि आपका जो ब्रेन है ना वो रणछोड़ दास वाला किस लेवल पे है, साइंटिस्ट वाला ब्रेन किस में, ये रिपोर्ट से निकल जाता है। अब जिन जिन में वीक हो उसको दूर करने के लिए हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। बोलो, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम। ये जापान का प्रोग्राम है, इसमें हम 10 डेज का वर्कशॉप स्कूल्स में करते हैं विद द परमिशन ऑफ पेरेंट एंड मैनेजमेंट। एंड आप लोगों की तो हाँ होनी चाहिए, आप सबकी हाँ होगी तो हम 10 दिन का वर्कशॉप स्कूल में करेंगे, जहां पे आपको एक बायोलॉजिकल जो है 44 हर्ट्ज का एक म्यूजिक सुनाया जाएगा, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराई जाएगी और डांस कराया जाएगा। उसका परिणाम है कि 10 क्लास के बाद आपका लेवल ये आ जाएगा कि आप जो 1 घंटे में चीज याद करते हो वो आपको 15 मिनट में याद हो जाएगी, जो याद किया है वो लंबे समय तक याद रहेगा, अपनी एज से 3 साल मैच्योर हो जाओगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए वो योग्यता आ जाएगी। इवन ये तक हो जाएगा कि आपका लेवल की कोई भी किताब को आप 10 दिन के अंदर पेज नंबर सहित याद कर सकते हो। जिसको साल भर लगेगा ना याद करने में, वो 10 दिन में चुटकियों के अंदर आपको याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जब म्यूजिक सुनाते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं तो यहां से अंगुली डालो और यहां जहां ये दोनों अंगुलियां मिलती है वहां एक छोटी ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। वो हार्मोन का सीक्रेशन आप में और हम में, जो बड़े पेरेंट्स उनमें 70 माइक्रोएमएल के हिसाब से हो रहा है, लेकिन बच्चों में ये बढ़ा के 120 माइक्रोएमएल लाया जा सकता है। जिस बच्चे का ये 120 माइक्रोएमएल आ जाएगा उसका लेवल ये होएगा कि उसकी याददाश्त अच्छी होगी, 10 दिन में तो चीजें याद होगी। एक चमत्कारिक चीज उसमें आएगी जिसके लिए हमें अमेरिका में नासा में सम्मानित किया, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को टीवी चैनल्स पे भेज सके। वो ये कि आप सब में ये योग्यता आ जाएगी कि आपकी आंखों पे अगर पट्टी भी बांध दे तो आप बंद आंख से किताब पढ़ सकते हो, कलर पहचान सकते हो, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हो, पैरों से अखबार पढ़ सकते हो, पूरी की पूरी किताब को स्मेल करके बता सकते हो कौन से पेज पे क्या है, भले ही आपने वो किताब कभी देखी ना हो। ऐसे 1000 बच्चे हम तैयार कर चुके हैं। हमें 11 साल हो गए इस लाइन में और 450 स्कूल्स में हम कर चुके हैं, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, डीएवी हो, सिंधिया हो, सारे लीडिंग स्कूल्स हमको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बिहार कभी आना ही नहीं हुआ क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, इज टू टफ बिकॉज वी आर रिजाइडिंग इन हम लोग जयपुर राजस्थान से, जयपुर में 6000 स्कूल है और राजस्थान में 56,000 स्कूल है। राजस्थान पार नहीं पड़ता, बिहार का नंबर कहां से आएगा? हमें 11 साल लग गए। एंड यू मस्ट बी ग्रेटफुल तेज नारायण जी और आपके स्कूल मैनेजमेंट के लिए कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा दिया। अदरवाइज अगले 2-3 साल तक भी हमारे प्लान में नहीं था कि हम यहां पर आएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा हम 6 देशों में और ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं। तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम यहां आके ये सारी चीज करें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मधुबनी को ये मौका मिला। पटना का भी नंबर नहीं आया, उन्होंने कहा यार मैं कह रहा हूं मेरे करने से एक बार कर दो, और इसके लिए जो रंजन साहब है उनके लिए भी हम बहुत ग्रेटफुल है, मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज उन्होंने ये प्रोग्राम किया। इतना ना तो हमें टाइम मिल पाता है और ना हम अच्छा बच्चे तैयार करने के बाद उन्हें टीवी चैनल पे भेजना, उनको इसी स्टफ को तैयार करना कि राष्ट्रपति स्तर पे उनको सम्मानित किया जाए, सारी चीज हम लोग कर ही रहे, करते ही हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। लेकिन अच्छा एक चीज बहुत बेसिक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग जनरली क्या कहते हैं,
मछली का काम पानी में तैरना होता है, लेकिन अगर मछली को यह कहा जाए कि तू, मान लो अभी एजुकेशन सिस्टम जो बना है ना वो किस तरह का है कि एक पेड़ है, पेड़ पे जो सबसे पहले चढ़ेगा ना वो विनर। अब ऐसे में मछली तो मारी गई बेचारी, क्योंकि वो तो तैरने में बेस्ट है, उसको आप पेड़ पे चढ़ा ही नहीं सकते, कैसे चढ़ेगी, मर जाएगी, नहीं चढ़ सकती। शेर को कह दिया जाए या हाथी को कह दिया जाए कि तू तैर के जो है ना सबसे पहले पहुंच, तो भैया तू विनर कहलाएगा। हाथी बेचारा ताकतवर है लेकिन उसको तैरने के लिए दौड़ाया जा रहा है। ये एजुकेशन की स्थिति है, और हम यही चाहते हैं कि अगर आप किसी फील्ड में हाथी हो ना तो पता चलना चाहिए कि हाथी हो, और अगर आप किसी फील्ड में मछली हो तो पता चलना चाहिए, उसी लाइन में उतरो जिस लाइन में आप 90% वाले हो, ताकि आप एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव कर सको। पर मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, अभी हम आपको लाइव करके भी दिखाएंगे, उससे पहले मैं आपको 3 एक्सरसाइजेस कराऊंगा ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों का ब्रेन बैलेंस है कि नहीं। क्या पता ब्रेन बैलेंस ही नहीं हो, मैं यूं ही मेहनत करूं आप लोगों के साथ, हो सकता है ब्रेन बैलेंस हो, अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट करें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर पे 2 एक्सरसाइज कराता हूं ताकि हम ये पता कर सके कि आपका ब्रेन बैलेंस है कि नहीं। अभी हाथ कंगन को आरसी क्या पता चल जाएगा, अननेसेसरी आपका क्यों टाइम वेस्ट करना, क्या पता पहले से इंटेलिजेंट हो तो अभी पता चल जाएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हो इंक्लूडिंग बच्चे, सब अपना जो राइट हैंड है उसको ऐसे कर लो, दायां हाथ, पेरेंट्स एंड ऑल, हाँ बिल्कुल दायां हाथ ऐसे कर लो, अभी पता चल जाएगा पेरेंट्स का बच्चों का ब्रेन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज अंदर से बाहर में ऊपर करके दिखा देता हूं। ये जितने भी यहाँ पे अच्छे से देख लो ताकि आपको आइडिया लग जाए। इसको क्लॉकवाइज बाहर की तरफ घुमाना है, ऐसे बाहर की तरफ घुमाना है। अरे आगे वाले के मुक्का मत मार देना, बदला निकाल लो। आज आसानी से हो रहा है ना, बगैर किसी दिक्कत के हो रहा है। अब रोक लो, अब लेफ्ट हैंड ले उल्टा, इसको एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उल्टा घुमाना है बाहर से अंदर की तरफ। ये भी आसानी से हो रहा है ना, बगैर किसी दिक्कत के हो रहा है। अब देखो, राइट वाले को आपने बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया था, दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर। हाँ देखें जरा, अरे मेरे देवानंद ऐसे अंदर थोड़ी चलाना है, एक बाहर एक अंदर पकड़ना सर। देखो कौन है, कौन कह रहा है कर सकता है। देखो हाँ देखो, ये है, इसको बाहर घुमाना है, इसको अंदर घुमाना है, इज लाइक दिस। ये टिपिकल इंडियन स्टाइल है, पहले इसको घुमा लिया अब इसको घुमा लेते हैं। नहीं भैया, दोनों एक साथ करना है, या तो बाहर जाएगा या तो अंदर आएगा, एक टाइम में दोनों काम हो ही नहीं पा रहे। हमारे तो प्रैक्टिस में देख लो, कोई हो तो इधर लेडीज को भी देख लेते हैं भाई। हाँ है क्या कोई? अरे मैडम नाचना नहीं है, वो देखो बच्ची कर रही है, या तो बाहर जाएगा या तो अंदर होएगा, नहीं हो रहा ना। चलो अच्छा, एक एक्सरसाइज और करते हैं, अभी पता चल जाएगा। एक एक्सरसाइज और करते हैं, देखो अभी विनीत सर कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, ये बड़ी वाली फिंगर ऐसे अंदर कर लीजिए, बाकी सारे बाहर। बंद है। चलिए सब ऐसा कर लिया। अभी आपको क्या करना है, बड़ी वाली फिंगर को अंदर कर लीजिए, बाकी सारी बाहर रखेंगे, ऐसा लाइक दिस, आराम से हो रहा होगा। अभी आपको क्या करना है, जैसा मैं करूं वैसा करेंगे। इस थंब को ओपन करिए और वापस से जोड़ लीजिए। इजीली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी करने में। फर्स्ट फिंगर को ओपन करिए और जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे छोटी फिंगर ओपन करो, जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक चीज आपको करनी है, जो बड़ी फिंगर आपने ऐसे दबा रखी है, बैंड की हुई है, इस फिंगर को ऐसे ओपन नहीं करेंगे, दबाए रखेंगे, और दबाए दबाए आपको रिंग फिंगर अलग करनी है। कोशिश करिए करने का, रिंग फिंगर अलग करो। जैसे आपने थंब अलग किया, फर्स्ट फिंगर, लिटिल फिंगर, ये वाली फिंगर अलग करके देखिए किससे हो पा रही है। लेकिन ये ऐसे उठना नहीं चाहिए, दबा के रखेंगे। कोशिश करिएगा, कौन कर पा रहे हैं कोशिश करके देखिएगा, कोई तो पर्सन होगा। दबा के रखना है, मैं आपकी मदद करता हूँ। किसी से ऊपर है, इसको दबा के रखना है ऐसे अंदर, जो आपकी हेल्प करते हैं। दिक्कत आ रही है करने में, प्रॉब्लम आ रहा है? चलो ठीक है, अगली एक्सरसाइज एक और करते हैं। एक एक्सरसाइज मैं आपको और कर रहा हूँ, वापिस से हाथ ऐसे करेंगे। लो सर पकड़ना। चलिए इधर से कोई हो रहा है, बिल्कुल सर सपोर्ट करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन 15 साल से कम के बच्चे कर सकते हैं।
चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज एक और करते हैं। देखो पहली एक्सरसाइज आपको ये करें, 1 मिनट के लिए आप साइलेंट हो जाएंगे, मेरे को ध्यान से सुनो। ये तीसरी एक्सरसाइज आप यहाँ बैठा हर शख्स कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी चीज आपको फील होगी, वो उसी को फील होगी जो एक्सरसाइज करेगा, नहीं तो फील नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपने पहली वाली एक्सरसाइज करी, शायद कुछ लोग कर पाए कुछ नहीं कर पाए, सेकंड वाली ऑलमोस्ट कोई नहीं कर पाया, लेकिन ये थर्ड एक्सरसाइज आप यहाँ मौजूद इस हॉल में मौजूद हर शख्स कर सकता है। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज फील होगी, जैसे मैं कर रहा हूं मुझे करके देखिएगा। वापस से अपने हाथ आपको इसी तरीके से कर लेने, अभी जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करेंगे। स्तंभ को ऐसा रोल करिए और वापस से जोड़ लो। बहुत आसानी से किया, किसी को दिक्कत नहीं। फर्स्ट फिंगर रोल करो और जोड़ लो, थर्ड फिंगर रोल करो जोड़ लो। लेकिन ये सारी ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं दबाना है, ऐसे खोल के रखेंगे। आपने इसको किया कोई परेशानी नहीं, इसको किया कोई परेशानी नहीं, इसको किया कोई परेशानी नहीं। लेकिन थर्ड फिंगर में आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा, एक कुछ तनाव सा फील होगा, परेशानी आएगी। जितना फास्ट आप इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, थर्ड फिंगर करोगे तो आपका हाथ ऐसे छूटेगा या थोड़ा आपको दिक्कत आ रही है, महसूस हो रही है दिक्कत। तीनों एक्सरसाइज के साइंटिफिक रीजन, तीनों एक्सरसाइज के साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। नाइन्थ क्लास से हमारे को ये पढ़ाया जाता है कि हमारे इस हाथ की जितनी भी वेन्स हैं, इस वाले हाथ की, राइट वाले हाथ की, वो लेफ्ट वाला ब्रेन कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाले हाथ की जितनी भी वेन्स हैं, नसें हैं, वो राइट वाला ब्रेन कंट्रोल करता है। 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, पढ़ा है, ऐसा क्रॉस होता है। तो वही तो हमने यहाँ पे करके दिखाया। मैंने क्या कहा आपको कि आप ऐसे करिए, थोड़ी सी शांति बनाओगे तो मैं एक चीज और जोरदार बताऊं आपको, ध्यान से सुनोगे तो एक एक्सरसाइज और कराऊंगा और एक अपीलिंग चीज आपको भी और करके दिखाने वाला हूं, जो यहाँ बैठा भी कोई शख्स शायद ही कर पाएंगे, पर ध्यान से सुनोगे तो हो पाएगा। देखो हमने आपको क्या कहा कि आप अपना राइट हैंड ऐसे करिए क्लॉकवाइज, तो आपने यू किया, जैसे हमने ऐसा कहा तो यू डिड लाइक दिस, आपने ऐसा किया तो आपके इधर वाले ब्रेन को मैसेज गया ऐसे करना है, तो आपने तुरंत ऐसे कर दिया, आपके ब्रेन को सिग्नल गया। सडनली हमने कहा यार इस वाले हाथ को ऐसे करो, तो आप इस वाले हाथ को करने लगे, तो आपके इधर वाले ब्रेन को मैसेज गया ऐसे करना है, तो आपने ऐसे कर दिया। दोनों में कोई परेशानी नहीं, लेकिन सडनली हमने कहा दोनों हाथों को एक साथ करिए, दोनों हाथों को करने के लिए कहा गया, तो ब्रेन गेटिंग कंफ्यूज कि भाई क्या काम कर रहा है यार, एक टाइम एक कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है मेरे को। तो आप इस चीज को कर नहीं पाए, उसके पीछे रीजन आपके दोनों ब्रेन के बीच में ग्लैंड होता है, जिसके बारे में विपुल सर ने जिक्र किया था। क्या नाम है उस ग्लैंड का? पीनियल ग्लैंड। उस पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन होगा तो आपके दोनों ब्रेन बैलेंस स्थिति में होंगे। लेकिन अगर हमारे ब्रेन बैलेंस नहीं है तो हम इंफॉर्मेशन तो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो गैदर कर लेते हैं, लेकिन राइट वाले ब्रेन में ट्रेवल होके जाती नहीं है, तो वहां स्टोर नहीं होती, तो हमें कुछ समय के लिए चीजें याद रहती है, फिर हम भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया भूल गए, परीक्षा नजदीक आ गई भूल गए, एग्जाम में लिखना था पूरा नहीं लिखा। उसका रीजन है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है। आप चीज याद तो करते हो लेकिन स्टोर राइट ब्रेन में होती नहीं है, क्योंकि उधर ट्रेवल करके जा नहीं रही। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सबके साथ ऐसा है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो जन्मजात के क्वालिटी लेकर पैदा भी होते हैं, जिनके दोनों ब्रेन बैलेंस स्थिति में होते हैं, लेकिन आपको और हमें नहीं पता कि बैलेंस है या नहीं है। तो हम जो टेस्ट करते हैं रिज एनालिसिस, जिसमें हम फिंगरप्रिंट लेते हैं, उससे इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगता है कि आपके दोनों ब्रेन की स्टेटस क्या है, लेवल क्या है, दोनों ब्रेन बैलेंस है या नहीं है। चलिए सेकंड एक्सरसाइज की बात करते हैं। सेकंड में आपको ये फिंगर दबाने के लिए कहा था, बड़ी फिंगर, तो आप इजीली कर पा रहे थे, लेकिन थर्ड फिंगर रिंग फिंगर आप उठाने में आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही थी। तो साइंटिफिक रीजन इसका भी बता देता हूँ। 9th क्लास से पढ़ाते हैं ये पूरे हाथ का, लेकिन एमबीबीएस सेकेंड ईयर में पढ़ाते हैं कि हमारी सिर्फ लिटिल फिंगर की नसें ही इधर वाले ब्रेन को कंट्रोल करती है, ये वाला इधर वाले की इधर वाले को करती है। जब आप हाथ को घुमा रहे थे तो केवल थर्ड फिंगर आपको उठाने में भी दिक्कत और थर्ड एक्सरसाइज में उसको घुमाने में भी आपको परेशानी महसूस। ये केवल थर्ड फिंगर ये डिसाइड करती है कि हमारे दोनों ब्रेन बैलेंस स्थिति में है या नहीं है। तो इस स्कूल ने हमारे को मौका दिया, मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर सर ने, उसके लिए हम आभारी हैं। हमें यह मौका मिला और आप वो पहले स्टूडेंट होंगे इस मधुबनी क्षेत्र के, मैं तो कहूँगा बिहार के ही, बिहार में पहली बार आप लोगों के यहाँ पे हम आए जो ये क्लासेस करा रहे हैं। बहुत जगहों पे चल रही है जिसका नाम मैं आपको यूट्यूब चैनल का बता ही दूंगा, आप देख लेंगे। लेकिन आपके बिहार में मधुबनी में पहले ऐसे स्टूडेंट आप होंगे, पहले ऐसे अभिभावक आप होंगे जो अपने बच्चों का एनरोल कराएंगे, और आप ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार इसके अंदर सीखने की इच्छा जाहिर करेंगे या सीखेंगे या ऐसा करके दिखाने लगेंगे। 10 डेज के बाद 11वें दिन हम वापस से ऐसी वेबिनार करते हैं 11वें दिन, और पेरेंट्स को बुलाते हैं। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होता है उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं,
हमारे 10 दिन के वर्कशॉप में जो भी बुक लेकर आप आए थे वो बुक आप लेके आएंगे, हम आपको सारी याद कराएंगे। 11वें दिन पेरेंट को आप बुक पकड़ाओगे और जैसे मैंने ये डिजिट सुना दी वैसे ही आप स्टेज पे खड़े होंगे, पेरेंट पेज नंबर बोलेंगे और आप कंटेंट सुनाएंगे। इतना जबरदस्त गारंटी से हम लोग पूरे विश्वास के साथ ये चीज कराते हैं और आज तक ये होता रहा है। लेकिन आपको कैसे बिलीव होगा, तो उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये जो मैंने आपको करके दिखा दिया कि पॉसिबल है, कुछ तो ऐसा ही जो मैंने कर दिया, बाकी तो मैंने चीज करके दिखा दी। मेरे पास ऐसी कोई फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है जो मैं सुनते ही कर दूं, कितनी भी डिजिट हो, लेकिन टेक्निक है, फटाक से याद कर सकते हैं। वो चीज आपको भी सिखाई जा सकती है। आपके लिए डिजिट है, मेरे लिए तो 3-4 मोबाइल नंबर थे सामने, तो मेरे को हो गए। लेकिन ये कैसे हो सकते हैं, ये चीज आपको हम सिखाएंगे, लेकिन सुनते ही फटाफट कैसे कर दो, ये अमेजिंग चीज है। ऐसा नहीं है क्योंकि एक मोबाइल नंबर बोलूंगा आपको याद नहीं रहेगा, 70 23 855 208 शायद याद हुआ, नहीं हुआ, लेकिन मेरा बोलने का स्टाइल ऐसा था कि शायद किसी ने याद कर भी लिया हो। लेकिन जो वो बच्चा बोल रहा है वो मैं कैसे सुन रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चीज जा रही है, उसका बोला हुआ मैं अंदर क्या करता हूँ जिसके कारण मुझे पूरी डिजिट याद हो जाए। वैसे ही जब टीचर कुछ बोल रहा है तो वो कंटेंट क्या चीज है जो टीचर बोल रहा है लेकिन आपके दिमाग में एसिमुलेट कर रहे हैं, आपके दिमाग में आ जा रहा है, तब क्या चीज होनी चाहिए आपके दिमाग में, कन्वर्ट कैसे होना चाहिए दिमाग में, तो आपको फास्ट चीजें याद हो जाएगी। कितने स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं, सभी लोगों ने इच्छा जाहिर करी है, तो मैं चाहूंगा कि विपुल सर आगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उनका जवाब जरूर देंगे। और हमारे साथ में लोकल रिप्रेजेंटेटिव तेज नारायण जी यहाँ मौजूद हैं, जो जिनसे अगर आपको यहाँ लोकल कुछ बात करनी हो तो सर यहाँ मौजूद है, सारी चीज बताएंगे। बाकी मैं विपुल सर से आग्रह करूंगा, एक चीज बताने वाले हैं कि इस क्लास में आने के लिए किन 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अगर वो रखते हो तो इस क्लास में आप आ सकते हैं, अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये क्लास आपके लिए उतनी फायदेमंद नहीं होगी जो रूल फॉलो करने वाले के लिए होगी। प्लीज विपुल सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। एक बार विनीत जी के लिए जोरदार क्लैप कर दो यार, ये जोरदार थी। एक बार मुझे लगा यार जोरदार थी। चलिए ऐसा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो विनीत सर ने कहा है बिल्कुल सही है। इतने सारे बच्चे बैठे हो इंक्लूडिंग पेरेंट्स, देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है भैया, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं मेहनत बता देता हूं क्या करनी पड़ेगी, अगर वो कर सकते हो तो प्रोग्राम में एडमिशन लेना, वरना भाई साहब 132 करोड़ की आबादी है, हम वही बच्चे चुनेंगे जो हमारे बताए नियमों पर चलेंगे, क्योंकि मेहनत हमारी बहुत लगती है, हार्डकोर मेहनत लगती है। और फिर बच्चा वैसा नहीं करे तो हमारा दिल ज्यादा टूटता है, क्योंकि इतनी यूनिक चीज अमेरिका से लाए तो चाहते हैं यहाँ के बच्चों को मिले। सबसे पहला कंडीशन दैट यू नीड टू फॉलो, जितने बच्चे बैठे हैं अगले 3 महीने तक आपको अगर ऐसा चाहिए, विनीत सर ने जो करके दिखाया है, अगर आप चाहते हो पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो जाए, फिर चाहे वो कोई सी किताब हो, और एक बार सीख लिया तो आप 7th क्लास में हो तो 8th में भी यूज करोगे, 9th में हो तो 10th में यूज करोगे, 11th में, पूरी लाइफ काम आने वाला है, पूरी लाइफ ये रिजल्ट लेने वाला है। आप बस याद करते जाओ, इतना जबरदस्त तरीका है। लेकिन करना क्या है, अगले 3 महीने के लिए जिस दिन आप वर्कशॉप में एडमिशन लोगे, पहली क्लास लोगे, उस दिन से बता रहा हूं, आपको मोबाइल को 3 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा, गेम खेलना। सिर्फ इतना सुन लो, गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। हमने ये नहीं कहा व्हाट्सएप मत करो, ये नहीं कहा इंस्टा मत यूज करो, गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। कारण बता देता हूं, जब आप मोबाइल पे गेम खेलते हो तो जैसे मोबाइल आपके हाथ में है तो उससे एक ब्लू कलर की रेज निकलती है जो डायरेक्ट यहां हिट करती है, और यहां पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल, उससे एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, उसका सीक्रेशन गिरा देती है। वो बेसिकली आप सब बच्चों में 120 माइक्रोमेल होना चाहिए। अगर आप मोबाइल के ऊपर गेम खेल रहे हो तो 3 नुकसान है, मेलाटोनिन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, सीक्रेशन कम होने के 3 नुकसान होंगे। पहला तो बुक जो है ना, याद कर रहे हो ना, वो लंबे समय तक याद नहीं रह सकती, 2 दिन बाद वापस संभालना पड़ेगा, अरे यार भूल गया या भूल गई। दूसरा, याद ही नहीं होगा, रिटेन नहीं करता है ब्रेन। और तीसरा, ये जो प्रोग्राम हम करा रहे हैं इसमें हमें 120 माइक्रोमेल के हिसाब से हार्मोन चाहिए और आपका 70 है, तो हम उसे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ हम बढ़ाने में मेहनत करें और आप घर जाके मोबाइल पे गेम खेल लोगे, हमारी सारी मेहनत बेकार है, कोई लाभ नहीं होगा। अगर 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने बाद भले आप मोबाइल के अंदर घुस के बैठ जाना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 महीने तक मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। अगर 3 महीने तक गेम खेलना छोड़ सकते हो तो ये रिजल्ट टिल लाइफ आपको मिल सकता है, और ये रिजल्ट मिल सकता है। अब आप डिसीजन लेके हाथ खड़े करके बताओ कितने हैं जो 3 महीने का त्याग करने को तैयार है मोबाइल का। परमानेंट याद हो जाएगी किताब, फिर कोई सी हो, सारे तैयार है भाई। पेरेंट्स लोग देख लेना ये देखे छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। ओके, नाउ नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट वो पेरेंट्स के लिए है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। मोबाइल के अतिरिक्त एक काम और करना पड़ेगा, जितना पानी आप लोग पीते हो, जितना पानी आप पीते हो, अभी ये भाई खड़ा ना, इसी से पूछ लेते हैं, आप एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हो भाई? पीते ही नहीं हो? नहीं सर, लगभग 7-8 गिलास। 7-8 गिलास। आप? 8 गिलास। हाँ भाई 8 गिलास। अच्छा, अभी वो तो पेरेंट्स बताएंगे, हाँ बेटा कितना पीते हो?
4 गिलास, आधा कर दिया। चलो आप 8 गिलास। 8 गिलास। अब ये तो इनके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि बेटा पीते हैं कि नहीं पीते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, हाँ बता दो कितना गिलास पानी पीते हैं? 4-5। तो जितना भी गिलास पानी पी रहे हो ना, बेसिकली 7 से 8 गिलास तो पीना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन जितना भी गिलास पानी पी रहे हो उसमें 2 गिलास आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड है उसके डाइल्यूशन के लिए जरूरी है। तो पहले ही पानी कम है, बॉडी में कितना कितना पानी है? 70% है। तो वो तो एक बात बताओ, चलो आप लोग मोबाइल यूज करते हो ना, अगर कोई मोबाइल की 128 जीबी की मेमोरी है तो 128 में से मेरे हिसाब से 30-40 जीबी तो मोबाइल खुद ही यूज करता है, उसके एप्स के लिए यूज करता है ना। तो आपकी स्थिति वही है, 70% जो पानी बॉडी में बताते हैं वो बॉडी अपने फंक्शन के लिए यूज करती है। ब्रेन कैसे चलेगा, लंग्स कैसे काम करेंगे, ब्लड के फ्लो के लिए, हर चीज के लिए पानी चाहिए, तो वो तो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए वैसे ही चाहिए बाबा। आपको एक्स्ट्रा में चाहिए पानी। हम लोग होठ सूखते हैं ना तब पानी पीने की, या प्यास लगती है ना तब पानी पीने की इच्छा जाहिर करते हैं, भैया ऐसे चलते फिरते पानी पीना होता है। लेकिन अगर आप नहीं पी रहे हो तो आदत में डालो। इतना ध्यान रखो, अगर इस प्रोग्राम को कर रहे हो तो 2 गिलास पानी ऐड कर लेना भैया। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन लंबे समय तक चीजों को याद करे, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग होनी जरूरी है, प्रॉपर सर्विसिंग जरूरी है, उसके लिए पानी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 गिलास पानी बढ़ा लो। कितना गिलास बढ़ाओगे? हाँ, और आज से ही शुरू कर दो। दूसरा, मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना है। अगर ये कर सकते हो तो ये रिजल्ट टिल लाइफ रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई हार्म नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग बैठे हैं तो आप ही लोगों से पूछते हैं कि अब इसके अतिरिक्त कोई मन में क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं तो आंसर करूंगा बहुत सारे। अभी एक सेकंड रुको सर, पहले पेरेंट्स का मैं अपने बता दूंगा। इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क? यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपने, यूजुअली लोग नहीं पूछते, लोगों को लगता है चीज अच्छी करा लेना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है। फिर भी अगर किसी के मन में क्वेश्चन आते हैं तो मैं बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, समथिंग इज हैपनिंग, क्या हुआ यार, देखो ना मेरे पेरेंट्स को क्या हुआ। अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, बच्चे छोटे बड़े आगे पीछे का है तो वो बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, मैं मेरी चीज कंप्लीट कर लूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पे बात करेंगे सर, वो जो भी है, जैसा भी सेटलमेंट है, बच्चे बैठे हुए हैं। मैं इतना सा कह रहा हूं, अगर जितने लोग बैठे हैं मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो पेरेंट्स बैठे हैं इनको मिला के बता रहा हूं। हमारे ब्रेन से 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये 3 का प्रॉपर सीक्रेशन होना जरूरी है। जिन बच्चों का ये सीक्रेशन प्रॉपर होता है, जिंदगी में वो बच्चे कभी सुसाइड नहीं करते, कभी डिप्रेशन में नहीं आते। तो अगर आपको ऐसा पता लग रहा है कि कोटा में कोई बच्चा है या कहीं भी कोई बच्चा है जिसने सुसाइड कर लिया या डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके मेलाटोनिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन का सीक्रेशन बहुत कम हो गया था, और ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। अगर इनका प्रॉपर सीक्रेशन है, लोगों के फर्क नहीं पड़ता। जिनके इसका सीक्रेशन कम हो जाता है वो सुसाइड करते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये बायोलॉजिकल रीजन बता रहा हूं आपको। तो ये आपके लिए यूं भी बेनिफिट है कि भाई साहब एक समस्या का परमानेंट इलाज हो गया कि ये कभी डिप्रेशन मेरी जिंदगी में आएगा ही नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी में डिप्रेशन आएगा ही नहीं, टेंशन कभी आएगा नहीं। अभी यूपी के एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया साहब, तो इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं होगी ना यार। आईपीएस बना है तो यूपीएससी टफेस्ट एग्जाम है, तो फिर सुसाइड कैसे कर लिया? लिख के गया है कागज में कि साहब घरेलू परिस्थितियों के चलते सुसाइड कर लिया। इसका मतलब उसका इमोशनल क्वेश्चन, उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं विपरीत परिस्थितियों में कैसे बिहेव करें, ये दोनों बहुत वीक है। ये इस टेस्ट में आता है, ये हमें पहले दिन से पता होता है। जिस बच्चे का ये वीक होता है, हम पेरेंट को पहले ही बता देते हैं कि इसका ये पार्ट वीक है, इस पे काम करना है, ताकि इन फ्यूचर इस पे इसका इंपैक्ट ना पड़े। और इसके लिए हार्मोन ज्यादा जल्दी बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। पर करोगे तो उसके साथ ना जिसका आपको पता होगा, पहले दिन से हमें पता होता है कि ये बच्चा, अच्छा आपको पेरेंट्स की एक स्टाइल बताता हूं, पता नहीं मम्मियां तो करती है, बताता हूं। मान लो 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं घर में, तो मम्मियां क्या करती है, अपना लाइक गुस्से में आ गए तो तू उस कमरे में बैठ, तू उस कमरे में बैठ, दोनों तेज तेज आवाज में बोल के पढ़ोगे, मुझे कमरे में आवाज आनी चाहिए। यूजुअली पेरेंट डू दैट, ठीक है ना। अब मान लो बच्चा मन में पढ़ने वाला है, चुपचाप पढ़ने वाला है, लेकिन मम्मी ने कह दिया जोर जोर से पढ़, तो अब डर के मारे वो जोर जोर से पढ़ेगा, ब्रेन की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट चला गया। दूसरा इशू, वो याद नहीं होगा, 1 घंटे की चीज 5 मिनट में, 5 घंटे में याद होगी, फिर मम्मी कही जब तक लिखे ही बैठा है, भाई वो उसकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट चला गया, इसलिए वो याद भी नहीं रहेगा। याद रहेगा तो घंटे 2 घंटे 1 दिन के अंदर भूल जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये टेस्ट। और हाँ, सबको बता रहा हूं, यहां बैठे हुए लोगों को, हम कोई भाग्य नहीं बता सकते, ना ही कोई ज्योतिष। भगवान ना करे किसी का कभी एक्सीडेंट हो, पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है, मान लो पैर में दर्द है तो डॉक्टर कहता है एक्सरे करा लो,
एक्सरे में या फ्रैक्चर है तो डॉक्टर कहता है प्लास्टर करा लो। अब प्लास्टर करना या एक्सरे करने का अर्थ ये थोड़ी हमने कोई भाग्य देख दिया, जादू डॉक्टर ने कोई ज्योतिष देख दिया। बायोलॉजिकली प्रूवन है भाई, अभी हाल फिलहाल तुम्हारे ब्रेन की क्या स्थिति है वो निकाल के बता देता है। ऐसे ये प्रोग्राम है, हाल फिलहाल आपके बच्चों के ब्रेन की क्या स्थिति है सामने खोल के बता देता है। तो हम बता सकते हैं देखो यहाँ वीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, इन हिस्सों में न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा है, इसको इसी लाइन में करियर बना के दो ताकि ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। आपके बिहार के नहीं, लखनऊ के एक डॉक्टर है, डॉक्टर ओंकारेश्वर, मैं उनका नाम लेके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एमबीबीएस एमडी है, अभी यूपी में योगी सरकार में रिटायर हुए हैं, आई स्पेशलिस्ट। और उन्होंने मुझे स्पेशली कहा हम लोगों को, क्योंकि वो हमारी टीम का सदस्य है, वो इसीलिए बने कि सर जिस भी स्कूल में जाओ, जिन भी पेरेंट्स से मिलो, मेरा एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं बता देता हूं, डॉक्टर ओंकारेश्वर, नेट पे भी चेक कीजिएगा उनके साथ क्या समस्या हुई, या यूं कहूं वो बड़े जबरदस्त डॉक्टर हुए यूपी के। फिर उनको लगा बच्चे को भी डॉक्टर बनाना चाहिए, तो बच्चे को भी डॉक्टर बनाया, तो बच्चे ने एमबीबीएस किया, फाइट किया, पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर गया और एमबीबीएस हो भी गया। लेकिन वो पहला ऐसा बच्चा है जो एमबीबीएस करने के बाद में प्रॉपर्टी डीलर बन गया। अब पेरेंट की चिंता हो गई, इसलिए वो बाद में रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाया है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, जब वो हमसे बोले यार विपुल जी मैं आपको बताऊं मेरा तकलीफ क्या है, मेरा तकलीफ ये है कि अगर मुझे पहले दिन से ये बात पता होती ना कि इसका ब्रेन मैनेजमेंट का, बिजनेस का है, तो मैं इसको कभी साइंस नहीं दिलाता। अगर ऐसा फिंगरप्रिंट पहले आया होता तो इसकी 5 साल की एमबीबीएस और 2 साल की प्रिपरेशन, 7 साल इसकी जिंदगी खराब हुए, और ये उस लाइन में जा रहा है जिस लाइन के लिए बना ही नहीं है, तो उतना एक्सट्रीम सक्सेस भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर बन जाना डजंट मीन कि आपने एक्सट्रीम सक्सेस बना गया। क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके मेडिकल हॉस्पिटल्स खुले हुए बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते। एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए तो पता चलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए ये बोला ये टेस्ट हो जाता तो मैं मेरे बच्चे का 7 साल पहले ही चेक करके इसको कॉमर्स दिलाता, बीकॉम कराता, बीबीए कराता, मैनेजमेंट में डालता, तो जहां है उससे 10 टाइम्स ज्यादा आगे जाता। दूसरा एग्जांपल देता हूं उन्हीं का गिवन। सपोज आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, प्रोबेबली यू आर ड्राइविंग कार, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपको राइट में टर्न करना है, आप या यूं को आप बाइक चला रहे हो, आप रास्ता चूक गए, आपको रास्ता मिला नहीं कुछ भी कारण से, तो इंडियंस क्या करते हैं, रोक के गाड़ी साथ वाले से पूछते हैं भाई साहब वो जगह किधर है, तो लोग करते रहे यार भाई साहब आप तो आगे आ गए, आप एक काम करो एक सर्किल पीछे जाओ, फिर दूसरा सर्किल पीछे जाओ, फिर राइट में मुड़ना, वहां से स्ट्रेट सीधे जाना, आपकी जगह आ जाएगी। अगर विपुल जी आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? मैंने कहा भाई साहब गाड़ी घुमा के वापस जाऊंगा, जहां है वहां पहुंचूंगा। बोले जिद तो नहीं कर लोगे ना कि नहीं 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 अब तो इसी रास्ते पे पकड़ लिया जो पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं नहीं। बोले आजकल तो जीपीएस सिस्टम है, मोबाइल में मैप से भी पता चल जाता है। मैं कहा जी बिल्कुल। बोले जिद तो नहीं करोगे ना? कि नहीं जी बिल्कुल जिद नहीं करेंगे। तो बोले यही तो रीजन एनालिसिस है। मान लिया 20 की उम्र में गलती हो गई, 15 की उम्र में गलती हो गई, 30 की उम्र में गलती हो गई, अरे जब पता चल गया है तो उस गलती को सर पे ढोना जरूरी है क्या? रास्ता बदल लो ताकि अपने ट्रैक पे पहुंचो कि नहीं मैं तो जिंदगी भर इसी रास्ते पे चलूंगा। ये रीजन निकाल के दे देता है कि आपका जो बच्चा है उसका एग्जैक्टली ब्रेन किस लाइन के लिए बना है, ताकि जो बच्चा अच्छा किसी भी फील्ड के लिए यहाँ पे मेडिकल की तैयारी कराओगे तो मेडिकल का स्टफ है कि नहीं आपको क्या पता, पहले पता तो करो। केवल उसको डंडे के जोर पे ये कहना कि तुझे डॉक्टर बनना है तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। पता तो चले वो आईएएस स्टफ है, वो चार्टेड अकाउंटेंट के लिए बना है, वो वकील बने तो राम जेठमलानी जैसा वकील बनने के लिए बना है, वो जज के लिए बना है, वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बना है, वो किस लाइन के लिए बना है ये पता चलना चाहिए। अभी इंडिया का एक फास्टेस्ट बॉलर निकल के आया है जिसका ये पता करके आए थे इरफान पठान, उमरान मलिक, ध्यान है ना आईपीएल में भी खेल रहा है आजकल, 157 की बॉल फेंक रहा है। इतने सालों का इंडिया में नहीं निकला, लेकिन एक आदमी आया उसने उसकी स्ट्रेंथ पहचाना और निकाल लिया। हम यही कहते हैं बायोलॉजिकली अगर आपको ये बात पता चल जाए तो आप एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव कर सकते हो।